Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Welcome to the week 13. The value of the week is cooperation. Cooperation means teams work because coming together is a beginning and working together is a success. The topic that we are going to discuss is from class 10, subject physics, chapter electrostatics, and the topic that we are going to discuss today is combination of a capacitor, both in a parallel combination in a parallel and series system. There are some key points that we are going to cover in today's lecture. The first one is electrostatics. What's the meaning of a chapter? What is capacitor? What is capacitance? The parallel combination, the series combination, and the charge and voltage. Because we are going to discuss both the combinations, the parallel combination and a series combination, and what is the relationship between charge and voltage with respect to capacitor. So there are some questions related to the topic. There are some what are the factors that affect the capacitance of a capacitor, the main parts of a capacitor, how the capacitors are arranged in a parallel system, how capacitors are arranged in a series system, and many more are given here. You have a look at it. So first of all, we have to know about what is electrostatic. Electrostatics is defined as the study of a charge. And capacitor, what is capacitor? Capacitor is defined as a device, or we can say that a storage device that is used to store charge. And the word capacitance is derived from a capacitor. Capacitance is defined as the ability of a capacitor to store charge. कि जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस है. जैसे हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अगर आप प्रीवियस नॉलेज को अपने रिकॉल करें तो मेटल की प्लेट्स होती हैं जो कि बहुत ही थिन होती हैं और वो पैरेलल अटैच्ड होती हैं और उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है. उस डिस्टेंस के अंदर कोई भी मीडियम हो सकता है, वो एयर मीडियम हो सकती है या किसी भी चीज़ की वो शीट हो सकती है. यहाँ पे किसी भी हम मेटल की कोई शीट एक दरमियान में अटैच कर सकते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. जो इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, कोई भी इंसुलेटर की एक शीट दरमियान में हम यूज़ करते हैं और वो हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है. नाउ what is the relationship between charge and voltage? Charge and voltage are directly proportional to each other. As जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका चार्ज भी इंक्रीज होता जाता है आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर. अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक आता है इक्वल का साइन और उसके साथ आता है एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हमारे पास यहाँ पे C है जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की. क्लियर है? नाउ there are two combinations of a capacitor. The first one is the capacitor in parallel system or a parallel combination, and the second one is a capacitor in series system. The first diagram are related to the series combination of a capacitor, and the second diagram is related to a parallel system of a capacitor. The third one is there are three capacitors, but C2 and C3 are in a parallel system, but they both are in series with C1. And as with the fourth diagram, there are C1 and C2 are in series with respect to each other, but they both are in parallel system with capacitor C3. So there are a combination. First we are going to discuss capacitor in a parallel combination. There are C1, C2 and C3. These are the capacitance of a capacitor, capacitor 1, 2 and 3. These three capacitors are attached in a parallel system, and Q1, Q2 and Q3. This is a charge on the plates of a capacitor, and here is a voltage V and a key. K is represent a switch that we use to on and off
बाय ऑन द जैसे हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो वोल्टेज की सप्लाई स्टार्ट होगी, और जैसे हम इस की को रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज की सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब जो चार्ज है वो कैपेसिटर्स के पास, जो उनकी प्लेट्स के पास स्टोर हो रहा था, उसकी सप्लाई को रोक दिया जाएगा की को रिमूव करने से। अब यहाँ पे अब जो हमारे पास पैरेलल सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम में क्या है कि जो आपके कैपेसिटर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं बैटरी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज यहाँ पे बैटरी का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे हर कैपेसिटर का होगा, क्योंकि हर कैपेसिटर जो है वो एक सेपरेट वायर के साथ बैटरी के साथ अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है, जो क्यू चार्ज सप्लाई हो रहा है बैटरी से, वो यहाँ पे सबका सेम नहीं होगा पैरेलल सिस्टम में। पैरेलल सिस्टम में क्या होगा, जो चार्ज है वो डिवाइड होगा तीनों कैपेसिटर्स में, क्योंकि बैटरी तो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही है जो वोल्टेज सप्लाई कर रही है, जो चार्ज सप्लाई कर रही है, लेकिन जो चार्ज है वो तीनों कैपेसिटर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज इनका क्या आएगा, वो सेम रहेगा तीनों कैपेसिटर्स में। There are some characteristics of a parallel system. Each capacitor attached with voltage V. As I discussed earlier कि जो कैपेसिटर्स हैं वो एक सेम वोल्टेज के साथ अटैच हैं सेपरेट वायर के साथ, इसलिए उनकी प्लेट्स के क्रॉस में जो वोल्टेज जो उस कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा, मतलब जो मेन वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं उसको। सेकेंड पॉइंट क्या है, चार्ज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। जो चार्ज है प्लेट्स की ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो डिफरेंट होगा। वो क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। जब उसकी जो कैपेसिटेंस मतलब हर कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो डिफरेंट है। जब चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट होगी तो उसकी प्लेट्स के अक्रॉस में जो चार्ज होगा वो भी डिफरेंट होगा। आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि टोटल चार्ज सप्लाइड बाय अ बैटरी इज डिवाइडेड अमंग द कैपेसिटर। एज आई डिस्कस अर्लियर कि जो चार्ज है सप्लाई कर रहे हैं हम लोग बैटरी के थ्रू, वो उनका डिफरेंट होगा क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी। और उस जो जितना चार्ज पैरेलल सिस्टम में अगर हमारे पास तीन जो हम लोगों ने कैपेसिटर हैं वो ज्वाइन किए गए हैं, या तीन से ज़्यादा भी अगर किए गए हैं, या तीन से कम है, तीन से कम क्या होंगे, दो होंगे, या अगर ज़्यादा करेंगे तो हम तीन से ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितने भी कैपेसिटर हम लोगों ने एक पैरेलल सिस्टम में अरेंज किए गए हैं उनके प्लेट्स के क्रॉस में जितना चार्ज होगा, अगर हम लोगों ने उस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज निकालना होगा तो हम उन सबके चार्ज को प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टोटल चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कि उन तीन कैपेसिटर्स को हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में अगर ज्वाइन किया गया है तो उनका जो टोटल चार्ज होगा पूरे सिस्टम का, सर्किट का, वो इन तीनों चार्ज को प्लस करने से आएगा। और जैसे कि हम लोगों ने पहले स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो Q चार्ज है वो किसके इक्वल था, Q इज इक्वल टू C1, मतलब उसकी कैपेसिटेंस और वोल्टेज के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ पे हमें पता है कि वोल्टेज तो सेम है, कि हर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, क्योंकि वो एक सेपरेट वायर के साथ डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है हर कैपेसिटर, तो वोल्टेज उनका सेम है। तो यहाँ से अगर हम वोल्टेज को हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेके हम उसको इज इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो जितना भी उसकी Q ओवर V है वो क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा, कि जो कैपेसिटेंस का सम है उसके इक्वल आ जाएगा। अब Q ओवर V को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसको C के इक्वल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट अरोज हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की, वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस में जो है उसके इक्वल है। मतलब हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल आ रही है, CEQ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, वो किसके इक्वल आ रही है, हर कैपेसिटर के जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटेंस है उसके इक्वल है। CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम ये भी हमें पता चलता है कि अगर किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा भी जो कैपेसिटर्स हैं वो हमने अरेंज किए गए हैं, तो उन सबकी कैपेसिटेंस को प्लस करके हम उस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमारे पास चार्ज का अगर हम लोगों ने फार्मूला निकालना है, या हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालना है, या हमने वोल्टेज का फार्मूला निकालना है, तो हमें आसानी हो जाएगी। जैसे ये इस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो फर्स्ट पोर्शन में क्या है, Q बना हुआ है, यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये V है।
तो अगर हम लोग है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने Q का फॉर्मूला निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, Q ऊपर है तो हम नीचे कैपेसिटेंस और वोल्टेज को दोनों के प्रोडक्ट से क्या होगा कि Q का फॉर्मूला हमारे पास निकल आएगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोगों ने C का फॉर्मूला निकालना है तो C का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर Q और V को दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह अगर हम लोगों ने वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर का कि कितना वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज को सेपरेट करें और Q और V को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह इस ट्राइंगल के थ्रू एक ईजीएस्ट वे है कि हम लोग कैसे कैपेसिटेंस का, चार्ज का और वोल्टेज का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आगे सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारे पास। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, इन कैपेसिटर्स इन अ सीरीज सिस्टम। सीरीज सिस्टम में हम लोग कैपेसिटर्स को कैसे अरेंज करते हैं, या सीरीज सिस्टम में एक चेन बन जाती है, जैसे C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि एक चेन की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज है। और इस चेन को जो हम लोगों ने एक अटैच किया हुआ है एक वोल्टेज के साथ, मतलब एक बैटरी के साथ हम लोगों ने इसको अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्योंकि जो ईच कैपेसिटर डायरेक्टली अटैच नहीं है बैटरी के साथ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। हर कैपेसिटर का वोल्टेज डिफरेंट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V1, V2 और V3 के साथ। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होगा ईच कैपेसिटर का वो सेम होगा। वो सेम इसलिए होगा क्योंकि हर कैपेसिटर की जो प्लेट है वो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और जो सेकंड वाला फार्मूला है इसके थ्रू हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब अगर कैपेसिटर्स हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है तो उसके थ्रू हम लोग वो फार्मूला निकाल सकते हैं। अब जो CEQ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, और C1, C2, C3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को। अब यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसके बाद हम लोग बात करें कि अगर हमने किसी कॉम्बिनेशन के अंदर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, मतलब अगर हम लोगों ने कैपेसिटेंस को से हम लोग चाहते हैं कि किसी सिस्टम को हम किसी दूसरे सिस्टम के साथ अटैच करके उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दें, तो हम लोगों को कैपेसिटर्स पैरेलल सिस्टम में लगाने चाहिए। कि जब हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो उस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो और अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे, लेकिन अगर हमें कैपेसिटेंस जो है वो कम चाहिए तो हम उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे। ये एक पॉइंट था एक्स्ट्रा, तो मैंने आपको बता दिया कि इस कॉम्बिनेशन में जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है, कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए होगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रेफर करेंगे, और अगर हमें कैपेसिटेंस कम चाहिए होगी तो हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे। थैंक यू. If you have any queries, then you have to ask your teacher to solve out it. Thank you so much.